good evening everybody. In our last lecture, we had dealt with kinematics of circular motion. मतलब सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इन सभी बारे में हमने समझा था. नाउ इन टुडेज लेक्चर विल स्टडी डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. देखिए, हम कहते हैं यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, if this is a particle, the mass of particle is m. Mass of particle is m, and this particle is in circular path of radius r. Radius of circular path is equal to r. At any instant, if velocity of particle is v, or the linear speed of particle is v, and angular velocity is omega, यदि इस पार्टिकल का लीनियर स्पीड v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, in that case we used to say that there is a centripetal acceleration of the particle. पार्टिकल पर एक सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन है और रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन है. इफ इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड is v and angular velocity is omega, then this AR, which we call centripetal acceleration. Now, what do you mean by this term centripetal? Centripetal means any quantity directed toward the center. Centripetal acceleration means acceleration which is directed toward the center. यह सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन है, its value is v omega or omega square r or v square by r. Now the thing is, यदि यह पार्टिकल रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है, in that case there must be some force acting on the particle in radially inward direction. इस पार्टिकल पर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स अवश्य लगना चाहिए. And that force in radially inward direction, we call it centripetal force. हम इस फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. And that force is mass into radial acceleration, or this is equal to mv square by r or m omega square r or mv omega. हम कहते हैं any particle in circular motion is constantly acted upon by a force in radially inward direction, and that force in radially inward direction we call it centripetal force. Centripetal, the term means
the direction along the center. The force which have got its direction always along the center. It means जब यह पार्टिकल इधर है तब फोर्स की डायरेक्शन यहां होगी, जब यह पार्टिकल इधर है तब इस फोर्स की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट तब भी अलोंग द सेंटर इस तरह से होगी। जब यह पार्टिकल इस जगह पर है तब इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होएगा दैट इज ऑलवेज मास इनटू रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन और mv स्क्वायर बाय r और m ओमेगा स्क्वायर r और n v ओमेगा। दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स which always act on the particle which is in circular motion. Up. Where do this force come from? Who applies this force? हम कहते हैं this force, यदि हम ग्रेविटेशनल सिस्टम की बात करें, यदि हम अर्थ और मून की बात करें, this is earth and this is moon, and this moon is in circular motion round the earth. Now we know that earth attract any body toward its center, and that force due to earth is because of the gravitational pull of earth. That gravitational force due to earth, that would provide the necessary centripetal force. मून पर लगने वाला जो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होएगा which is in radially inward direction, that would provide the necessary सेंट्रिपिटल फोर्स। इसी तरह से हम सन और अर्थ की यदि बात करें, सन और प्लैनेट की बात करें, दिस इज सन एंड दिस इज एनी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। वंस अगेन सन अट्रैक्ट ऑल द प्लैनेट्स टुवर्ड इट्स सेंटर एंड दैट फोर्स due to sun is once again gravitational force, and that gravitational force would provide the necessary centripetal force. इसी तरह से यदि हम बात करें एटम की और एटम के अंदर न्यूक्लियई की और उस न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, दिस इज द न्यूक्लियई having positive charge, having all the proton in it, और इन प्रोटॉन की वजह से इस न्यूक्लियई के पास पॉजिटिव चार्ज है, while this is an electron revolving around the nuclei. This electron revolving around the nuclei is in circular motion, it's in circular path. It have got some finite mass, finite velocity in a circular path of radius r. It have got finite angular velocity. Now, इस nuclei और electron system में once again nuclei is having positive charge, electron is having negative charge. This positive charge would attract the negative charge. और इन दोनों के बीच में जो attractive force है, we call it Coulombic force or the electrostatic force. The electrostatic force on electron, this force would be always directed toward the nuclei. This attractive force, which is electrostatic force, we call it centripetal force. Here, this Coulombic force, we also call it Coulombic force, or the force by the force expressed by the Coulomb's law. This would provide the necessary centripetal force. इसी तरह से
if we imagine any vehicle moving on a circular path, कि हम किसी व्हीकल को इमेजिन करें जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, a car moving on a circular path, this is a circular path, और इस सर्कुलर पाथ में there is a car moving with some velocity v at some radius r. एक हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, इसमें कोई कार मूव कर रही है. हम कहते हैं इन दिस केस दिस कार मस्ट बी हैविंग सम फ्रिक्शन विथ हॉरिजॉन्टल रोड. इस कार का हॉरिजॉन्टल रोड के साथ में कुछ फ्रिक्शन होएगा, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होएगा. यह कार जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. हियर दिस फ्रिक्शनल फोर्स वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. हम कहते हैं यदि हम एक पत्थर को रस्सी से बांध दें और उसे हम इस तरह से सर्कुलर पाथ में घुमाएं, हमने पत्थर को रस्सी से बांधा हुआ है और उस पत्थर को हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं. किसी भी समय पर उसका रेडियस r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. वी यूज टू से देयर वुड बी सम टेंशन इन द रोप. उस रस्सी में कुछ टेंशन आ जाएगा एंड दैट टेंशन इन द रोप वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. इस तरह से हम कहते हैं कोई सा भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है, यदि वह सर्कुलर पाथ में है, देन देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन and that external force which is in radially inward direction we call it centripetal force, and the magnitude of that centripetal force is always equal to mv square by r or m omega square r or mv omega. अब मैं इसी सिचुएशन पर कुछ प्रॉब्लम्स इसी समय करता हूं. लेट्स सॉल्व दिस सिचुएशन जो मैंने अभी बना रखी है. अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ. अ कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ. जो रोड का प्लेन है, इनफैक्ट दैट इज दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसके ऊपर यह कार है जो कि इस तरह के सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कैपिटल R. लीनियर स्पीड ऑफ द कार इज V. द एंगुलर स्पीड ऑफ द कार इज ओमेगा. V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R. यह कार ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है. अब हम कहते हैं if we write dynamics of this car, हम कहते हैं इस कार का कुछ वेट होएगा mg, that is in vertically downward direction, और रोड के द्वारा इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा. And we will say the normal reaction offered by horizontal road would be equal to mg. horizontal road के द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर होएगा दैट इज इक्वल टू mg. नाउ दिस फ्रिक्शनल फोर्स in horizontal direction is in radially inward direction. This frictional force would provide the necessary centripetal force, and this frictional force is equal to mv square by r. इसका रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में
एक्सीलरेशन AR है, विच इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. नाउ अब इधर हम कहते हैं द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. यदि किसी भी सरफेस और बॉडी के बीच में यदि नॉर्मल रिएक्शन N है, then the maximum available frictional force is always equal to mu into N. The maximum available frictional force is always equal to mu into M into G. N की जगह N. Here mu is coefficient of friction. यदि म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो हॉरिजॉन्टल रोड और कार के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पॉसिबल हो सकता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू एन. इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी कार और हॉरिजॉन्टल रोड के बीच में नहीं हो सकता. म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन. N की जगह पर mg लिख दिया. अब हम कहते हैं एट एनी इंस्टेंट दिस इज द एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. हम कहते हैं दिस एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू दिस मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. इस जगह पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी समय पर, दैट एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. ये कभी भी मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि यदि यह मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सीड कर गया तो इस मैक्सिमम शब्द का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा. ये मैक्सिमम शब्द मतलब फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगेगा तो इससे कम ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लग सकता. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो इस मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स के या तो बराबर हो सकता है या इससे कम होगा. अब हम कहते हैं दिस इज एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स mv square by r and maximum available frictional force is mu mg. m से m cancelled. Mu is greater than equal to v square by gr. इसका मतलब है for safe driving of this car on horizontal road, for safe motion of car on this circular हॉरिजॉन्टल रोड. यदि आप इस सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड पर कार को बिल्कुल सेफली चलाना चाहते हो तो अब जो बातें मैं लिखूंगा, पहली बात, या तो आप कहेंगे म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर, जो रोड और कार है उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए. यदि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे कम हो गया तो यह कार इस सर्कुलर पाथ में सेफली चलने के बजाय स्किड कर जाएगी, वो स्लिप कर जाएगी, वो कार टिका सकती है.
यदि म्यू की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो गई तो क्या आप मुझे बताएंगे इस रोड और कार के बीच में म्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे कम करा जा सकता है? यदि मैं कार और रोड के बीच में म्यू को कम करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? कैन यू टेल मी द मेथड्स बाय विच आई कुड डिक्रीज दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? यदि मैं इस रोड पर पानी फैला दूं या ऑयल फैला दूं, पानी फैला देने से, कीचड़ फैला देने से, ऑयल फैला देने से रोड और कार के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। और यदि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम हो गई तो ऐसे केस में आप अच्छी तरह से जानते हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते हुए सड़क पर यदि कीचड़ पड़ा हुआ और आप एकदम तेजी से टर्न करने की कोशिश करो, आप टर्न करने के बजाय आपकी गाड़ी फिका जाती है। यू मे मीट अ सीवियर एक्सीडेंट, आपकी गाड़ी इस तरह से टर्न करने के वजह से फिका गई और आपके घुटने टूट गए। दैट मे बी द सिचुएशन इफ यदि आप गीली सड़क पर चल रहे हो या किसी ऐसी सड़क पर चल रहे हो जहां कीचड़ पड़ा हुआ है, या फिर किसी ऐसी सड़क पर चल रहे हो जहां पर तेल फैला दिया गया है या बालू रेती पड़ी हुई है सड़क के ऊपर। इवन बिल्कुल बालू रेती, बारीक रेती यदि सड़क पर पड़ी हुई होगी तो उससे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। और आई मे ऑल्सो राइट, यदि मैं GR को ऊपर ले जाऊं तो मैं कहूंगा V स्क्वायर मस्ट बी लेस देन म्यू GR और वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन अंडर रूट म्यू GR। यदि आप सेफ ड्राइविंग चाहते हो तो दूसरी कंडीशन आप यह भी कह सकते हो, फॉर सेफ ड्राइविंग योर वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन दिस वेलोसिटी। यदि आप गाड़ी को धीमी चला रहे हो तो आप सेफली इस सर्कुलर पाथ पे चलते जाओगे, मगर यदि आप वेलोसिटी को बढ़ाते हो और वेलोसिटी को बढ़ते बढ़ते यदि इस वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी तो ज्यादा वेलोसिटी से चलाने पर वंस अगेन यू मे मीट एन एक्सीडेंट। सेफ ड्राइविंग के लिए आप हमेशा सर्कुलर पाथ में अपनी वेलोसिटी को इस वेलोसिटी से कम रखोगे। यदि आप देख रहे हो कि सड़क गीली है, बारिश हो रही है, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि यदि इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो वहां पर आपको फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा और फ्रिक्शन नहीं मिल पाने से आपकी गाड़ी फिका सकती है। और यू में से मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, V स्क्वायर अपॉन म्यू जी। योर रेडियस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू V स्क्वायर बाय म्यू जी। यदि आपने शार्प टर्न ले लिया और शार्प टर्न लेते समय आपका रेडियस इस वैल्यू से कम हो गया, योर रेडियस इफ इट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू तो आपकी सेफ ड्राइविंग रहेगी। और यदि रेडियस की वैल्यू इससे कम हो गई, जो मैंने इधर लिखी है, इससे कम रेडियस की वैल्यू हो गई, वंस अगेन इट्स अ अनसेफ ड्राइविंग। आपकी गाड़ी फिका सकती है, वंस अगेन आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब आप टर्न ले रहे हो, ज्यादा वेलोसिटी के साथ टर्न लेना चाहते हो, तो आपको फिर रेडियस भी आपका ज्यादा रखना होगा और इससे ज्यादा आपको रेडियस रखना होगा। इन सारी कंडीशंस को एक बार ध्यान से देखें। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन योर व्हीकल इज ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड दैट सर्कुलर ट्रैक इज हॉरिजॉन्टल। नाउ हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में स्मूथली ड्राइव करने के लिए यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्शन। आप
पूरी तरह से फ्रिक्शन पर डिपेंड कर जाते हो। यदि यहां फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आप स्मूथली, सेफली सर्कुलर पाथ में ड्राइव नहीं कर पाओगे। नाउ आई विल टेल यू अनदर कंडीशन इन विच हम सर्कुलर पाथ में ही मूव करेंगे मगर हम फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। किस तरह से, वह अगले आर्टिकल में समझाऊंगा। पहले इस चीज को ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो। नाउ as I told you in this article that यदि आप सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक यदि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो तो उस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करने के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्शनल फोर्स। वहां पर आप पूरी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड हो जाते हो और जनरली यह फ्रिक्शनल फोर्स इट में वेरी। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट द कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया की यदि हम बात करें तो इधर किसी भी रोड पर फ्रिक्शनल फोर्स में जो वेरिएशन आ सकता है दैट इज जनरली ड्यू टू रेनफॉल। बारिश में रोड पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह काफी कम हो जाता है और इसी वजह से हमने देखा है कि इफ इट इज ड्राई सीजन तो सड़कों पर कोई बहुत ज्यादा एक्सीडेंट नहीं देखने को मिलते हैं, मगर बारिश के समय हमने ऐसा ऑकेजनली देखा है कि गाड़ी जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है, एकदम से उन्हें टर्न करने की कोशिश करी और सड़क पर एकदम से फिसल गए। इंडिया में यदि हम बात करें तो स्थिति सिर्फ बारिश की वजह से, बट इफ वी टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक कनाडा जहां स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल में यदि सड़क के ऊपर बर्फ की चादर बिछ जाए तो यह समझिए कि वहां पर तो फ्रिक्शन फिर रह ही नहीं जाता है। वहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नियरली जीरो हो जाता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। वहां पर तो फिर गाड़ियों का चलना भी, गाड़ियों का टर्न करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। वहां पर फिर सर्कुलर पाथ में आप गाड़ी को, हॉरिजॉन्टल यदि सर्कुलर पाथ हुआ तो आप गाड़ी को स्मूथली और सेफली चला ही नहीं सकते हो। जबरदस्त वहां पर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन पर हम डिपेंडेंट रहे, यही हमारी गलती है। हम फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम कोई सर्कुलर पाथ है, कोई कर्व्ड पाथ है इस तरह का, और इस कर्व्ड पाथ पर गाड़ी मूव करवा रहे हैं। कर्व्ड पाथ मींस इट्स पार्ट ऑफ सर्कल। इस जगह पर अब हम रोड को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रखने के बजाय उस रोड में एक बैंकिंग कर देते हैं। उस रोड में हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल पर उस रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस तरह से? आई एम एक्सप्लेनिंग द बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड ऑन द टर्न। जब गाड़ी टर्न हो रही होती है, जिस जगह पर गाड़ी टर्न हो रही होती है उस जगह पर रोड को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाने के बजाय स्लाइट एंगल पर बनाया जाता है। किस तरह से बनाया जाता है हम समझेंगे। देखिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड द रोड इज बैंक्ड इन दिस मैनर at some angle alpha or at some angle theta लिखता हूं। इस जगह पर जहां गाड़ी टर्न हो रही है
जहां गाड़ी सर्कुलर पाथ में है, इस जगह पर रोड को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रखने के बजाय उसको, उसके आउटर रेडियस को थोड़ा एलिवेट कर दिया जाता है और इनर रेडियस को डिप्रेस कर दिया जाता है, और इस तरह से किसी एंगल थीटा पर इस रोड को बनाया जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब इधर जब कोई सा भी व्हीकल, मैं व्हीकल ड्रॉ करता हूं, इस जगह पर कोई सा भी व्हीकल जब टर्न करेगा, दिस इज दैट व्हीकल, v is the velocity, r is the radius and v is the velocity of the circular path. Now what happens? The weight mg act in vertically downward direction like this, and the normal reaction offered by this banked road would act like this, and this is in circular path, hence radial acceleration would be in radially inward direction like this. इस तरह से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। नाउ वी यूज्ड टू से नॉर्मल रिएक्शन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट वर्टिकल होएगा और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड सर्कुलर पाथ में इस तरह से होएगा। दिस कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यह एंगल थीटा होएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री से इस बात को सोच सकते हो। आप इधर एंगल को कंप्लीट कर लो, दिस एंगल इज थीटा, तो आपको यह एंगल, आप लिमिट से सोच सकते हो कि इस रोड का बैंकिंग जीरो होएगा, थीटा की वैल्यू जीरो होती जाएगी, तो यह एंगल जीरो होता जाएगा। दिस एंगल वुड बी थीटा। मैं अलग से फिगर ड्रॉ कर देता हूं इस थीटा को समझाने के लिए। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन यह मैंने दिखाई है, और एक कंपोनेंट यह बनाया है और एक कंपोनेंट यह बनाया है। यदि यह एंगल थीटा है तो इस एंगल को मैं ऑल्टरनेट एंगल कहूंगा, इसलिए यह थीटा हो जाएगा। यह 90 माइनस थीटा और इसलिए यह थीटा, इसलिए मैंने यह थीटा ड्रॉ करा है। हेंस दिस कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वुड बी n cos theta and this component of normal reaction would be n sin theta. Now in this situation, this mg would be equal to n cos theta. ये जो mg है यह n cos theta होगा, while centripetal force would be offered by this n sin theta. N sin theta, this component would act as centripetal force.
Here n sin theta act as centripetal force and it provide necessary centripetal acceleration. इसके द्वारा हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिल जाता है. सो दिस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है v स्क्वायर बाय r. तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. दिस मस्ट बी इक्वल टू n sin theta. One can always write this equation. I divide this equation by this equation. सबसे पहली बात, इधर हमें कोई फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं. रोड पर फ्रिक्शन हो या नहीं हो, रोड पर पानी पड़ा हुआ हो या नहीं पड़ा हुआ हो, रोड पर बर्फ बिछी हुई हो या नहीं, वहां पर रेती हो या नहीं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा है और रोड का एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे रहेगा. जितना भी रोड की बैंकिंग करी गई है हॉरिजॉन्टल के साथ, जितने अधिक एंगल के साथ में रोड की बैंकिंग करी गई है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ एंगल पर होगी. और नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है वह तो mg को इक्वेट कर देगा, mg को बैलेंस कर देगा n cos थीटा, while the sin component would offer the required centripetal force. हमें इधर फ्रिक्शन पर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई. फ्रिक्शन है तो बड़ी अच्छी बात है. फ्रिक्शन वुड मेक द ड्राइविंग वेरी सेफ, वेरी स्मूथ. मगर फ्रिक्शन नहीं भी है तभी नॉर्मल रिएक्शन के इस कंपोनेंट से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है और ड्राइविंग फिर भी सेफ है. नाउ इफ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, mv square by r upon mg is equal to n sin theta upon n cos theta. n cancelled, tan theta is equal to v square by gr or theta is equal to tan square of tan inverse of v square by gr. Now, while constructing the road, जब रोड को बनाया जाता है तब this angle theta is called angle of banking. Theta is banking angle of road. रोड को बनाते समय यह रोड की बैंकिंग सही तरीके से करी जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिविल इंजीनियर who is designing that road, who is constructing that road, who is supervising that road, जो सिविल इंजीनियर है सबसे पहले वह यह बात को सोचता है कि इस जगह पर हम स्पीड लिमिट क्या रखने वाले. हर एक टर्न पर एक स्पीड लिमिट लिख दी जाती है. दैट स्पीड लिमिट में बी 60 किलोमीटर पर आवर. उस रोड के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाएगा दैट स्पीड लिमिट इज 60 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड लिमिट इज 90 किलोमीटर पर आवर और द स्पीड लिमिट इज 30 किलोमीटर पर आवर. वो स्पीड लिमिट सबसे पहले फिक्स कर दी जाती है कि हम इस सड़क पर, इस रोड पर गाड़ी को किस स्पीड से चलवाना चाहते हैं, हम किस स्पीड से अधिक अलाउ नहीं करेंगे. सपोज उस रोड की स्पीड लिमिट रख दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए. उस वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकेंड, उस वेलोसिटी को इस v स्क्वायर वेलोसिटी की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं.
the value of g is always known to us, and then we see what is the turning radius. उस जगह पर जब गाड़ी टर्न होगी तो टर्न होते समय जो टर्निंग रेडियस बनेगा वहां रेडियस क्या होगा उसको एग्जैक्टली मेजर करा जाता है। हमने स्पीड लिमिट सेट कर दी, जी की वैल्यू हमें पता है, टर्निंग रेडियस हमने मेजर कर लिया, उन वैल्यूज को इधर हम सब्स्टिट्यूट करके थीटा की वैल्यू निकालते हैं और उस एंगल से हम उस रोड को बैंक कर देते हैं। इस तरीके से रोड की डिजाइन की जाती है। अब इस रोड पर कोई सी भी गाड़ी जब चलेगी तो वहां चाहे बारिश हो रही हो या नहीं हो रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां चाहे पूरे सड़क पर बर्फ पड़ी हो या नहीं पड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेत पड़ी हो या नहीं पड़ी हो, कीचड़ भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सड़क पर उस पर्टिकुलर स्पीड के साथ कोई सी भी गाड़ी चलेगी तो वह स्मूथली चलती चली जाएगी, क्योंकि उस गाड़ी को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा नहीं मिल रहा है बल्कि नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट से मिल रहा है। दैट कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वुड मेक द ड्राइविंग very much smooth on that road. Once again, यदि कोई ड्राइवर उस पर्टिकुलर स्पीड लिमिट से क्रॉस करता है, मान लीजिए किसी रोड पर स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर और कोई ड्राइवर उस जगह पर 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाता है, इन दैट केस डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स would start playing a role. उस पर्टिकुलर स्पीड लिमिट्स को यदि एक्सीड करता है, इन दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स वुड स्टार्ट प्लेइंग अ रोल और वह फ्रिक्शनल फोर्स उसकी ड्राइविंग को फिर भी स्मूथ बनाने की कोशिश करेगी। यदि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम वैल्यू होती है तब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा और तभी उसकी ड्राइविंग को स्मूथ बनाए रखेगा। हम कहते हैं इधर जो भी कुछ फ्रिक्शन है दैट वुड फर्दर एड इनटू टू मेक द ड्राइविंग वेरी मच स्मूथ। इस तरह से हमेशा रोड की बैंकिंग करी जाती है बनाते समय।